چنیوٹ میں مہنگائی کی نئی لہر، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل ہو گیا۔ آٹا میدا مہنگا ہونے سے نان روٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ تندور مالکان نے روٹی 5 اور نان روپے تک مہنگا کر دیا۔ روٹی 30 روپے فی وقت ہونے لگا۔ حکومت سے پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ چنیوٹ میں مہنگائی کے نئے طوفان نے سر اٹھا لیا۔ آٹا میدا مہنگا ہونے سے نان روٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تندور نے روٹی 5 اور نان 10 روپے تک مہنگا کر دیا۔ تندور پر روٹی 20 اور نان 30 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا تھا نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ روٹی 15 روپے سے بڑھ کر 20 روپے، جبکہ نان 20 سے 25 تو کہیں 30 روپے کا بھی فروخت ہو رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ آٹے میدے اور LPG گیس کی قیمتوں میں اضافے کے سبب ریٹ بڑھا ہے۔ بالکل آٹے کا بھی ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور نان روٹی کا بھی ریٹ زیادہ ہو چکا ہے۔ روٹی 20 روپے کی مل رہی ہے، نان 30 روپے کا مل رہا ہے۔ دیکھو غریب آدمی کیا کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، برائے مہربانی اس پہ کچھ کنٹرول کیجیے۔ بہت کام دور آ گیا ہے۔ آٹا بھی مہنگا ہے، روٹی بھی مہنگی ہے، نان بھی مہنگا ہے، کیا کھائیں گے؟ سر یہی کریں گے کہ 20 روپے کی روٹی مل رہی، 30 روپے کا آٹا مل رہا ہے، کاروبار بالکل کام ڈاؤن ہوئے ہیں، دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے، غریب آدمی جو ہے نا پس رہا ہے، وہ زیادہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی غریبوں پہ کوئی رحم کریں، کوئی ترس کریں۔ شہریوں کا مہنگائی کو روکنے اور آٹے اور میدے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد کی سبزی منڈی میں مہنگائی کا طوفان، منافع خور بے لگام۔ ٹماٹر پھر ٹرپل سینچری کر گیا، عوام کی چیخیں نکل گئی۔ ایک ہفتے میں مجموعی طور پر سبزیاں اور سبز مسالہ جات مہنگے ہوئے۔ ٹماٹر 140 روپے مہنگے ہو کر 270 روپے کلو ہو گئے۔ مارکیٹ میں 300 روپے کلو تک فروخت۔ پیاز کی قیمت میں 10 روپے کمی، سرکاری نرخ 90، مارکیٹ میں 120 روپے کلو۔ سبز مرچ اور لہسن کی قیمتوں میں 20 روپے کلو کمی ریکارڈ کی گئی۔ جھنگ میں ایک ہفتے میں چکن 29 روپے کلو مہنگا۔ چنیوٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 10% تک اضافہ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں آلو 10، پیاز 20، ادرک 25، سبز مرچ 40 اور ٹماٹر 80 روپے مہنگے ہوئے۔ فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ فیصل آباد میں سرکاری ریٹ صرف کاغذوں تک محدود۔ آلو 28 روپے مقرر، 100 روپے کلو فروخت۔ ادرک 355 روپے مقرر، مارکیٹ میں 400 روپے کلو دستیاب۔ عربی کی سرکاری قیمت 80 روپے 150 روپے کلو فروخت ہو رہی۔ ٹماٹر 140 روپے مہنگے ہو کر 270 روپے کلو مقرر ہو گئے۔ پیاز 90 روپے مقرر، 120 روپے کلو دستیاب۔ ٹینڈے 10 روپے مہنگے، نئی قیمت 125 روپے کلو ہو گئی۔ ٹماٹر 300، ٹینڈے 140 اور شملہ مرچ 350 روپے تک پہنچ گئی۔ بینگن 100، پھول گوبھی 180 روپے کلو فروخت۔ کریلا 10 روپے مہنگا، نئی قیمت 105 روپے کلو مقرر۔ سبز مرچ 20 روپے سستی، نئی قیمت 190 روپے کلو ہو گئی۔ سبز مرچ 150 سے 180 اور چائنا لہسن 400 روپے کلو دستیاب۔ شہریوں کا منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ جنگ میں 7 روز میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں تیزی ریکارڈ۔ چکن 29 روپے مہنگا، نئی قیمت 504 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 20 روپے مہنگے، نئی قیمت 247 روپے درجن ہو گئی۔ بینگن 5 روپے مہنگے، نئی قیمت 70 روپے کلو ہو گئی۔ بند گوبھی 25 روپے مہنگی، نئی قیمت 105 روپے کلو مقرر۔ ٹماٹر 70 روپے مہنگے، 270 روپے کلو مل رہے ہیں۔ بھنڈی 40 روپے مہنگی، 200 روپے کلو دستیاب۔ ٹینڈے 10 روپے مہنگے، نئی قیمت 130 روپے کلو مقرر۔ کریلے 10 روپے مہنگے، نئی قیمت 110 روپے کلو ہو گئی۔ شملہ مرچ 60 روپے مہنگی، 300 روپے کلو فروخت۔ کالا کولو سیب 380 روپے کلو دستیاب۔ کیلا اول 20 روپے سستا، نئی قیمت 170 روپے فی درجن ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں کئی اشیاء سرکاری نرخوں سے زائد فروخت۔ ٹوبا کی سبزی منڈی میں بھی مہنگائی کا وار۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر، آلو، پیاز، سبز مرچ اور ادرک کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیاز 20 روپے مہنگا، نئی قیمت 100 روپے کلو مقرر۔ ٹماٹر 80 روپے مہنگے، نئی قیمت 185 روپے کلو ہو گئی۔ لہسن 20 روپے سستا، 310 روپے کلو مقرر۔ ادرک 25 روپے مہنگی، 360 روپے کلو دستیاب۔ لیمو 50 روپے سستے، 200 روپے کلو فروخت۔ ناریل 400 مقرر، مارکیٹ میں 430 روپے فروخت۔ آم دسہری 250 روپے، جبکہ آم لنگڑا 150 روپے مقرر۔ کیلا 10 روپے مہنگا، 200 روپے درجن فروخت۔ چنیوٹ میں سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز، منافع خور سرگرم۔ سبزیوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 10% تک اضافہ۔ ٹماٹر 70 روپے مہنگے، قیمت 270 روپے فی کلو ہو گئی۔ چائنا لہسن 310 روپے اور دیسی لہسن 130 روپے کلو مقرر۔ تھائی لینڈ ادرک 360 روپے کلو پر برقرار۔ سبز مرچ 20 روپے سستی، 90 روپے کلو فروخت۔ بینگن 10 روپے مہنگے، 80 روپے کلو ہو گئے۔ بھنڈی 50 روپے مہنگی، 150 روپے کلو مقرر۔ گیا کدو 20 روپے مہنگا، 170 روپے کلو فروخت۔ گیا توری 19 روپے مہنگی، نئی قیمت 100 روپے کلو ہو گئی۔ شہریوں کا سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر، FBR کا طریقہ کار میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ کسی بھی ٹیکس گزار کے خلاف یک طرفہ فیصلہ ہونے پر حکم نامہ متعلقہ شخص تک پہنچانا لازم قرار۔
टैक्स गुजार को नोटिस मिले बगैर रिकवरी नहीं होगी। नोटिस की तामील फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीकों से होगी। एफबीआर ने नई पॉलिसी जारी कर दी। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर, एफबीआर ने टैक्स वसूली के तरीकेकार में अहम तब्दीली कर दी। किसी भी टैक्स गुजार के खिलाफ एक तरफा फैसला होने पर हुक्मनामा मुतल्लिका शख्स तक पहुंचाना होगा। नोटिस वसूल होने के बाद ही एफबीआर टैक्स रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर सकेगा। नोटिस की तामील फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीकों से करना होगी। एफबीआर ने नई इंतजामी हिदायत जारी कर दी। ऑर्डर वसूली की तस्दीक के बगैर रिकवरी की कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। शहरियों की जानिब से यकतरफा फैसलों और टैक्स रिकवरी के इक़दामात पर शिकायत सामने आई थी। एफबीआर ने मेंबर ऑपरेशंस की मंजूरी के बाद मतहद दफातर के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा सुई गैस का टैक्स वसूली में इजाफे के लिए बड़ा इक़दाम। फैसलाबाद में 20,000 से ज्यादा गैस मीटर तब्दील करने का फैसला। पुराने मशकूक और टेम्पर्ड मीटर्स का फॉरेंसिक कराया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में मुतल्लिका सारिफिन से वाजिबात वसूल किए जाएंगे। छेड़छाड़ पकड़ी जाने पर कानूनी कार्रवाई और रिकवरी भी होगी। महकमा सुई गैस का टैक्स वसूली में इजाफे के लिए बड़ा इक़दाम। फैसलाबाद में सारिफीन के पुराने मीटर तब्दील करने के अमल में तेजी। नवा माली साल के दौरान 20,000 से ज्यादा मीटर तब्दील किए जाएंगे। पुराने मशकूक और टेम्पर्ड मीटर तब्दील होंगे। उतारे जाने वाले मीटरों का फॉरेंसिक भी करवाया जाएगा। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में मुतल्लिका सारिफीन से वाजिबात की रिकवरी की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को जुर्मानों के साथ साथ कनेक्शन मुअत्तली और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि जाली डिग्री वालों पर वकालत के दरवाजे अब मुकम्मल बंद। पंजाब बार काउंसिल ने कार्रवाई का दायरा मजीद वसी कर दिया। कानून की डिग्रियों की तस्दीक न कराने पर 1,133 वकला के लाइसेंस मुअत्तल। फैसलाबाद डिवीजन से 50 से ज्यादा वकला की डिग्रियां भी मशकूक। शाह अब्दुल्ला लतीफ भटाई यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर्स मजीद 62 वकला के लाइसेंस भी मुअत्तल। वकालत करनी है तो असली डिग्री और दस्तावेजात साथ लाएं। पंजाब बार काउंसिल ने मुतल्लिका वकला को 28 जुलाई को तलब कर लिया। एक हफ्ता कबल भी फैसलाबाद डिवीजन के 43 वकला के लाइसेंस जाली डिग्री की बुनियाद पर मुअत्तल हुए थे। फंड्स की कमी या इंतजामिया की अदम तवज्जो। जंग में गोजरा रोड सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। तामीराती काम के बायस गोजरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। आमदरफ्त मुतासर। शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गर्दो गुबार और ट्रैफिक जाम से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबुद्दीन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में गोइरा रोड पर सेवरी लाइन बिछाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। तामीराती काम के बायस गोइरा रोड अरसा दराज से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सड़क की बंदिश से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। मतबादी रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। रास्ता बंद होने से न सिर्फ राहगीरों बल्कि दुकानदारों और ताजरों की भी मुश्किलात बढ़ गयी। कारोबारी अफराद का कहना है कि सड़क की बंदिश के बायस गाहकों की आमद कम हो गई है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये साथ वाली गली में मेरा घर है और ये मेरी शॉप है। 10 दिन हो गया मेरी शॉप पे कोई गाहक नहीं आ रहा। हमने अपने घर का सर्कल चलाना है, हमारे घर वाले परेशान है, हम खुद परेशान है। सारा दिन ऐसे जलील होकर घर चले जाते हैं। राहगीरों का कहना था कि अरसा दराज से रास्ता बंद होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। मतबादी रास्ता बहुत दूर पड़ता है। रास्ता नहीं है बिल्कुल, और हमको बहुत ऊपर से घूम कर जाना पड़ता है। हमने हर जगह पे काम करना होता है इंटरनेट का, और हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है। हम फिर गलियों में घूम घूम कर सारा दिन अजाब पे हो जाते हैं। शहरियों और ताजरों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज की जाए। तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके गोजरा रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। जड़ावाला में ठेकेदार की मनमानियां नाकिस। सीवरेज लाइन इस्तेमाल से कबल ही फट गई। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। हुकूमत पंजाब की कसीर ग्रांट से शहर भर में सीवरेज लाइनें बिछाने का काम जारी। मोहल्ला इस्माइलाबाद में ठेकेदार की जानिब से नाकिस काम। इलाका मकीनों का कहना था कि ठेकेदार की जानिब से नाकिस सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने से सीवरेज लाइन फट गई।
आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि मोहल्ला इस्माइलाबाद में ठेकेदार की जानिब से नाकिस काम, इलाका मकीनों का कहना था ठेकेदार की जानिब से नाकिस सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने से सीवरेज लाइन फट गई, हमारे घरों के फर्श और दीवारें बैठ गई है। नाकिस मटीरियल और नाकिस काम के बायस मुतादिद घर और मस्जिद की बिल्डिंग शदीद मुतासिर। इलाका मकीनों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब, DC फैसलाबाद और AC जड़ावाला से फौरी नोटिस का मुतालिबा। टोबा टैक्सी के इलाके गार्डन टाउन में लटकती बिजली की तारें शहरियों के लिए खतरा। घरों के ऐन सामने से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों पर तशवीश, इलाका मकीनों राहगीरों को हादसात का खदशा। शहरियों ने खतरनाक बिजली की तारें फौरी दुरुस्त करने का मुतालिबा किया। टोबा टैक्सी के इलाके गार्डन टाउन में फैसको इंतजामिया किसी सानह की मुंतजिर घरों के दरमियान बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गई। मेन शहरा पर झूलती तारें किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि आए दिन इन तारों से टकराकर शहरियों के गिरने के वाकयात पेश आते हैं। हमारे बच्चे खेलते हैं, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। फैसको से अपील है कि इन तारों को फौरी ऊंचा किया जाए ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। पहले भी हमने अपनी मदद आपके तहत तारों को ऊंचा किया है। फैसलाबाद निशाताबाद पुल से महले का रोड तजावजात माफिया की जद में आ गया। रोड पर रिक्शा, गाड़ियों और रेडियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। राहगीरों का रोड से गुजरना मुहाल हो गया। रश के औकात में ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बनने लगा है। फैसलाबाद निशाताबाद पुल से महले का रोड तजावजात माफिया की जद में आ गया है। रोड पर रिक्शा, गाड़ियों और रेडियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। राहगीरों का रोड से गुजरना मुहाल हो गया। रश के औकात में ट्रैफिक का जैम रहना भी मामूल बनने लगा। राहगीरों का मुतल्लिका इंतजामिया से रोड तजावजात खाली कराने का मुतालबा है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का खदशा। दरिया चनाब से मुंसलिक नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया को हंगामी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें अलर्ट रखने की हिदायत से 24 जुलाई के दौरान 20 दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा है। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर निचले से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरिया रावी और चनाब से मुल्हिका नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पासा हुकाम को हाई अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 को पेश की इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत जारी। शहरी किसी भी इमरजेंसी में PDM में हेल्पलाइन 1129 पर राबता करें। चलिए, और ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने करना शुरू कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ गाड़ियों के 552 चालान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ओवरलोडिंग के 9, गैर नमूना नंबर प्लेट्स के 11 गाड़ियों के चालान किए गए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के 22 ड्राइवर्स के चालान किए गए। 91 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 1 वे 29, कम उम्र 9 और 350 दीगर चालानों की मद में जुर्माना वसूल किया गया। DSP ट्रैफिक खुरम शहजाद कहते हैं, शहरियों की सहूलत के लिए स्पेशल मुहिम के तहत आसान तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों के साथ आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। मिलावटी दूध, मुजरे सेहत मशरूबात और मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले नेटवर्क को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 3 यूनिट सील, 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि सफाई की खिलाफ वर्जियों पर लाखों रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस यासिर मुश्ताक की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने जंग में मुख्तलिफ बेवरेजेस यूनिट्स, सीवीड्स शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और होलसेलर्स की चेकिंग की। मिलावट और जालसाजी में मुलविस 3 यूनिट्स को सील कर दिया गया, जबकि 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। छापों के दौरान 1130 किलो मिलावटी दूध, 200 लीटर मुजरे सेहत मशरूबात और 9 किलो जायदुल मियाद अशिया तल्फ कर दी गई। नाकिस सफाई के इंतजामात पर 4,95,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां जब्त कर ली गई। फूड अथॉरिटी का कहना था कि शहरियों को महफूज और मियारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी।
آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ میں مقامی فاؤنڈیشن کی جانب سے اہل علاقہ کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر معززین علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر رہنما جماعت اسلامی پروفیسر اقبال حصاری، اشفاق حصاری، سابق MP چودھری خالد غنی شریک ہوئے۔ ملک حبیب ڈائریکٹر واش پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب، ڈاکٹر سہیل فاروق صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جھنگ کی شرکت، سرپرست فاؤنڈیشن ضلع جھنگ فرید مگیانہ، اسامہ معاذ شاہ سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جھنگ، حسن بلال ہاشمی سمیت فاؤنڈیشن کے رہنما اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے جو 1 گھنٹے میں 1000 لیٹر پانی مہیا کرے گا۔ اہل علاقہ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب پر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی عام فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی پر مشتمل پلانٹ ہے جو تقریباً 1 گھنٹے میں 1000 لیٹر بہترین پینے کا پانی یہاں کے لوگوں کو مہیا کرے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کی بہترین صحت میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کرے۔